Hello all. Today is a very special day. नमस्कार. टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. पर्यावरण दिवस आज है और आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है क्योंकि हम रोज ही पर्यावरण दिवस मनाते हैं क्योंकि हम सब लोग नेचर से जुड़े हैं. एंड टुडे माय टॉपिक इज अबाउट द ग्रीन स्किल्स. In tune with the Skilling India, Green Skills was launched 2-3 years before by the Ministry of Environment in linked up with the Skill India. So these are the skills which help us to grow as well as to uh, conserve our environment. This is my first time that I am on Facebook Live, so please because we actually practically do all this thing. Technically we are learning, so every day we learn new things. This is again a one skill, technical skills. So when we merge technical skills with the green skills, it will be the best suitable skill because today in current scenario we all know that the situation is like we cannot go out the way before we were going. So it's a time to change, to switch to the technology, uh, but as well as we should stick to our traditional skills. So traditional skills and non-traditional skills, when we use it together, then we can have a sustainable future, right? So when we talk about the root skills, I'm a founder of root skills, traditional skills, and we merge the technology with the non-traditional skills with the traditional skills. So let's come on talk about the green skills. We are into tree plantation drive, waste management. Then we conduct the workshops for the schools and students, youth, because youth, we know, they are the future generation, future leaders of the nation. And when we talk about the skills, we all know that skills is there. If skill is there, then we will have the empowered nation. And I wish India should be a global country which have the maximum number of skilled people, and in particularly in green skills. So many skills are there like forestry. Students take up forestry, then waste management, uh, poultry, and organic farming, kitchen gardening. Here we are going to talk about the tree plantation drive. So it's a World Environment Day. We all know that we plant trees throughout the year, then we maintain them. It's very necessary that whatever we do, we take care of the nature as well. Green skills are those skills uh, when we practice or when we give service or when we work, we also consider the effect on the nature. So we can think of the smart cities, but we should also consider other impact as well. Like when it is needed, we have to consume energy, but wherever it is possible, we should try to conserve it. We should try to conserve environment at maximum. Like rivers nowadays, we know that आजकल जितनी भी जो नदियां है ना, आज अभी पिछले 1-2 महीने में सब रिजल्ट आने लगे हैं कि पोल्यूशन कम हो रहा है. बट द सिचुएशन वाज वर्स्ट बिफोर. बट यही सिचुएशन अगर कंटिन्यू करनी है तो वी ऑल हैव टू फॉलो reduce, reuse, recycle, and we should try to learn manage within available resources. Earth Mother Earth has given us plenty of resources like trees, pure air, pure water, everything. But we all have spoiled it because of our comfort and all. So, green skills are necessary for the strengthening the country. In present scenario, when we talk about the going global from local to global, right?
सो व्हेन वी से कि लोकली अगर हमें बिजनेस डेवलप करने हैं तो ग्रीन स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और काम आ सकती है, क्योंकि इसमें जो ये स्किल है उसके जो प्रोग्राम्स है वो इस तरह से डिजाइन करे हैं कि उसमें इवन 12th पास है या तो ग्रेजुएट करा हुआ है या तो साइंस स्ट्रीम के लिए भी बहुत सारे हैं, और इवन अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम ग्रीन स्किल पे फोकस करा जाए, क्योंकि स्किलिंग इंडिया जो है उसके तहत बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। टेक्निकली ये सब होगा, और साथ साथ अगर हम सॉफ्ट स्किल ग्रीन स्किल्स को भी अपना लें तो ग्रीन स्किल्स से अगर हम करें काम तो बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगी, और अपना नेशन जो है वो सशक्त होगा। और जो हम सशक्त भारत भारत जो है हमारा भारतवर्ष है जो वो पहले जो जैसे से था एंशियंट टाइम में हम बहुत सारे रिचुअल्स को जो फॉलो करते थे वो सारी बताती है कि हम किस तरह से अपने कंट्री को जो है वो कितना समृद्ध है। जो आज भी हमारी संस्कृति में बहुत सारे लोग ये फॉलो करते हैं, जैसे नदियों की पूजा करना, वी वर्शिप रिवर्स, वी वर्शिप सन, एंड ये सब जो है उसका रीजन भी यही है कि जब हम नदियों को पूजते हैं दैट मीन्स हमें उनको पॉल्यूट नहीं करना है। हमारे जो बहुत सारे जो इवन रिलीजियंस है उसमें भी ये ट्रेडिशन है कि व्हेन इट्स अ फर्स्ट रेन वी वेलकम रेन, वी वर्शिप इट, एंड हम पूजा करते हैं, जैसे ऐसे ही हम नदियों की भी पूजा करते हैं। तो मुझे याद है मेरे बचपन में हम नदियों में है ना जो श्रीफल होता है, जो कोकोनट, नारियल, हम उनको अर्पण करते थे, राइट। पर अब सब लोग अगर हम ऐसा कुछ करें तो काफी बार ऐसे बोलते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको तो हमें खाने में भी नहीं मिल रहा है, अगर जिन लोगों को उनको दे दो। ओके मिलेंगे, बट मुझे लगता है कि हम जो ये करते थे वो ट्रेडिशन अभी भी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि जब हम नदी में जब श्रीफल पूजा के रूप में अर्पित करते हैं तो वो बह के कहीं जाता है दूर दूर तक, किनारों तक, कहीं समुद्र के किनारे जाता है, कहीं नदियों के किनारे जाता है। तो मुझे लगता है कि वो नारियल का जो सीड है, जो नारियल है, उसमें से जरूर ट्रीज उगते होंगे। हम सब जानते हैं कि आजकल नारियल के ट्रीज कम हो चुके हैं, राइट। और काफी बार हमने देखा है कि लोग जो स्किल्स है अदर, जो नॉन ट्रेडिशनल स्किल्स है उनके तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। बट आपने कभी देखा है कि हमें खाना खाना है तो हमें वो उगाना ही पड़ेगा। जब हम बात करते हैं प्योर वाटर की, पानी ही पिया जा सकता है ना, हम बाकी सब तो प्योर वाटर अगर हमें नेचुरली मिले, अगर हम पॉल्यूट ना करें अगर रिवर्स को, तो कैसे ना करें। तो इसके लिए हमें ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। हमें बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल ही स्टॉप करना चाहिए, मतलब कि रीयूज करना चाहिए, या तो फिर जब जरूरी है तब यूज करा जाए, लेस कंजप्शन और वाइज कंजप्शन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एसडीजी 12, वाइज कंजप्शन एंड वाइज प्रोडक्शन, राइट। सो हमारा जो लैंड है वो पहले बहुत सारे पेड़ होते थे, कभी सारे जो एनिमल्स है उनके लिए उनके घर सेफ थे। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी ग्रिड बढ़ती जा रही है, हमने कंक्रीट के जो जंगल बना दिए, उसकी वजह से पेड़ बहुत कम हो गए, और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो आ रही है। तो ऑब्वियसली आई रिक्वेस्ट जो यूथ है, आज का जो यूथ है, अगर वो फॉरेस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स में डीप में स्टडी करते हैं, इनोवेशन करते हैं, न्यू न्यू तरीके अपनाते हैं, तो जरूर से ही नए नए फॉरेस्ट फिर से बनाए जा सकते हैं, जो रिस्टोर करे जा सकते हैं, जो ऑलरेडी खराब हो चुका है जो एनवायरनमेंट। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है उनको एनकरेज करें ग्रीन स्किल के लिए, उनको एनकरेज करें कि वो कोई ऐसा इनोवेशन करे जिनसे रिन्यूएबल सोर्सेस जो है जो और वो तरीके हैं जो एनर्जी जो है उस जो सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करा जाए, है ना। और पेड़ों की प्रोडक्ट्स जो है वो आज भूल चुके हैं कि बहुत सारी मेडिसिनल औषधियां जो पेड़ों से हमें मिलती है। मैं मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम
वो फालसा, करौंदा, आंवला, इमली, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जो खाते थे, पर आज सब कुछ वो प्रोसेस फूड में ही, सिर्फ वो टॉफीज और कैंडीज में ही बच्चे खा रहे हैं. Actually, even when we talk about the schools kids, we conduct workshops for many schools. Time to time, we keep on conducting the workshops. But these all trees are missing now. It's only in hometowns or villages and so. So we believe when जब अर्बनाइजेशन में हम बिलीव करते हैं तो साथ साथ हमें इनमें एनवायरमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, राइट. सो उसके लिए भी हमें ये इस प्रकार के हमें ट्रीज उगाने पड़ेंगे. इस तरह के जो वृक्ष है, जो हमें बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि दीज आर द प्रोडक्ट्स जो अमेजिंग है, नेचर वो हमें देता है. सो टुडे इज एन एनवायरमेंट डे एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर मुझे आप सुन रहे हैं और अगर आपकी स्कूल से कॉलेज से, तो आपकी स्कूल और कॉलेज में ये कुछ पेड़ जरूर लगाए, जैसे कि आंवला, करौंदा, इमली, नीम, है ना, बरगद तो होता ही है, अच्छी बात है. और ये फालसा है. सो क्या बच्चों को पता चले कि दीज आर द वंडर फ्रूट्स, medicinal trees, because when we go to the college for the workshops, मैंने देखा कि बहुत सारी आईबी स्कूल्स मुझे इनवाइट जब करती है, हम जब इको क्लब्स के जब स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो पता चलता है कि उनको नीम और करौंदा और ये पेड़ के बारे में पता ही नहीं है. और उनको जो औषधीय गुण है, जो जो हमें काम आते हैं, जो पेड़ से हमें मिलते हैं. मुझे याद है जब हमारा जो चाइल्डहुड था वो टाइम इतना अच्छा था. वही अभी भी बहुत अच्छा होता है चाइल्डहुड, बट मुझे लगता है कि वो चाइल्डहुड टाइम जो है वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे मिला है. क्योंकि इस तो ये जो ग्रीन स्किल्स है वो एक्चुअली एंशिएंट टाइम से हमारे इंडिया में, एंशिएंट टाइम से हमारे वहाँ है ही, एग्जिस्ट है. बट जब टेक्नोलॉजी का जो वार हुआ, टेक्नोलॉजी जब आई, मतलब जो ग्रीन स्किल्स के साथ उनका मर्ज हो गया, तो क्या हुआ ना, सब लोग ग्रीन स्किल से दूर होते गए और कंफर्ट लाइफ के लिए हमने सिर्फ टेक्निकल स्किल अपना ली. बट अब फिर से हमें जो ग्रीन स्किल्स है उनके लिए बहुत सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं और लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यही हमारा साथ में हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा. अदरवाइज जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हम हेल्दी फ्यूचर नहीं दे पाएंगे, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, मखाना जो एकदम हेल्दियर होता है, एकदम हेल्दी होता है, जो प्रोडक्ट खाने में भी टेस्टी होता है, अगर उनका जो अगर हम बात करें उनकी जो खेती या तो उनका जो प्रोडक्शन, तो मखाना जहाँ जो पानियों में जहाँ उगता है वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, राइट. तो वहां पर फिर टेक्नोलॉजी का यूज करें, है ना, टेक्नोलॉजी का वहां पर यूज करें. पर वही है कि कुछ रोबोट्स या इस तरह से आए कि वो ऑटोमेटिक पानी से निकाला जाए. और फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, अगर हम जब एग्री बिजनेस की बात करते हैं, सो अगर हमारे फार्मर्सों को टेक्नोलॉजी में अगर वो मैं मानती हूँ कि वो बहुत उनका बिजी लाइफ होता है, हार्ड वर्किंग लाइफ होता है, और वो ट्रेडिशनल वे में बरसों से जिस तरह से खेती करते आए वैसी तरीके से ही वो फार्मिंग करेंगे. बट अगर थोड़ा सा अगर उनको कोई टेक्निकल नॉलेज भी देता है, जैसे कि स्टेटिस्टिकल डेटा है, फिगर जो शेयर करने होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से एरिया में अभी उगाई जाए, तो वो बेटर वे में उनका ग्रो कर सकते हैं और उनका उनको जो रियल में जो वैल्यू है वो मिल सकता है और लोगों तक पूरा फूड भी पहुंचा सकते हैं. जैसे कि अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, हेल्थ की बात करें, स्टूडेंट्स की जो इम्यूनिटी सिस्टम्स जो है आजकल के लोगों की, उनकी बात करें, तो अगर वो आंवला, इमली, करौंदा और ये जो हेल्दी ऑर्गेनिक वे में अगर जो उगाई हुई फसल है अगर वो यूज करें, तो वो कैसे पॉसिबल होगा जब रिवर्स का जो पानी है इतना पोल्यूट हो चुका था. अगर अभी थोड़ा सा क्लीन हो रहा है, बहुत सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं, बट अभी और बहुत एफर्ट लेने की जरूरत है. तो अगर नदियों का पानी अगर प्योर होगा, तो जो सरफेस वाटर जो यूज करते हैं जो किसान भाई है, वो उसकी वजह से ही पॉसिबल होगा कि वो अच्छा प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक वे में उगा सके. तो यही है कि अगर हम बोलते हैं कि फार्मर्स की आमदनी जो है वो दुगनी चौगनी हो जाए, तो उनको ग्रीन स्किल्स जो है उसके साथ साथ उनको टेक्निकली भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा. तो टेक्निकली उसमें मर्ज हो रही है अभी.
because of this technology, even like forecasting of climate and all, like weather कैसा है, weather forecast. सो अगर जैसे अभी साइक्लोन कभी आता है, कभी कोई और नेचुरल कैलेमिटीज आती है, अगर उनको स्टैटिस्टिक डेटा मिल जाए, पहले से ही पता चल जाए, तो वो बेटर वे में स्टोर कर सकते हैं. दूसरा और बहुत सारी ऐसी स्किल्स है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हम बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम जैसे एज इट इज यूज कर सकते हैं, बट हमें चाहिए कंफर्ट, तो फिर सब लोग उसको स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करके ही बहुत सारी मार्केट में चीजें आ रही है, रो फॉर्म में नहीं आ रही है, तो उनके लिए बेटर सप्लाई चेन एंड बेटर वे में स्टोरेज कैपेसिटी ये सब जरूरी है, वो डेवलप हो रहा है, और बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें काम कर रही है. सो यही है सारा. और दूसरा है कि अगर हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें जो ट्राइबल्स है, जो ट्राइबल पीपल है, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए हमें जो उनका जो घर है, जो फॉरेस्ट, तो हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. हम जो पर्यटक स्थल है, जो एडवेंचर्स के लिए लोग विजिट करते हैं, तो विजिट करने के टाइम सबको अपना जो जो भी चीजें हैं, जो कचरा वहाँ फैला के आते हैं, वो नहीं करना है. उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स जो है, तो वो जो है वो गवर्नमेंट क्यों कोई स्ट्रिक्टनेस लाने के बाद ही कुछ अच्छा हो, ऐसा नहीं. हमें खुद ही अपने आप सब में कॉन्शियस होना पड़ेगा, सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट के प्रति. अगर एम्पावर्ड होना है, अगर नेशन को नंबर 1 बनाना है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो हमें सीखना पड़ेगा ग्रीन स्किल्स, क्योंकि ग्रीन स्किल के थ्रू ही एम्पावरमेंट आसानी से पॉसिबल है. हम हमारे जो हम एसडीजीज की बात करते हैं, जब वाइस प्रोडक्शन, वाइस कंजप्शन की बात करते हैं, है ना, फूड फॉर ऑल, प्योर वाटर, जब इन सब की बात करते हैं, तो ये आसानी से पॉसिबल होगा अगर हम ये ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको एकदम से अपनाए, लोगों तक पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा यूथ को हम एनकरेज करें कि वो ये जो है उनको अपना के उनको रियल लाइफ में एज ए प्रोफेशन, एज अ सर्विस और एज अ बिजनेस अपनाए. और अगर ऐसा ही रहा, अगर तो हमारा देश जल्द से जल्द ये जो भी महामारी आई है अभी, है ना, जो भी लॉस हो रहा है लोगों को, उससे निकल जाएगा बाहर और सेट हो जाएंगे. और जो छोटे छोटे विलेज है, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकते हैं. जैसे हमने बात करी मखाना, मखाना जो उसकी जो फार्मिंग है, वो कहीं पर्टिकुलर जगह पे जो इस तरह का माहौल होता है वहीं हो सकती है. जैसे चावल की खेती है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जो कुछ रीजन में बहुत अच्छे से उगते हैं, कुछ रीजन में नहीं उगते हैं. कुछ डेजर्ट प्लांट्स है जो डेजर्ट के टाइप के एटमोस्फेयर में, वेदर में सुटेबल है, वहीं उगते हैं. तो हमें ये जो सारी स्किल्स है, जो एंशिएंट टाइम से हमारे दादा ने, नाना ने, दादाजी ने, नाना जी ने, जो उन्होंने सबने हमको दी है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको दी है, वो हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देना होगा. और स्पेशली यूथ जो है आज, जब कॉलेज से जब बाहर आते हैं, एनवायरमेंट साइंस या तो एमएससी वॉट एवर, हाँ मैं मानती हूँ कि जब हम कंप्यूटर पे या तो ऐसे कभी वेबिनार्स और ये सब में इस तरह से बात करते हैं, तो वो स्किल्स ऐसे तो नहीं आ सकती है, प्रैक्टिकली लानी पड़ती है. क्योंकि फ्रेग्रेंस जो है वो यू कैन नॉट हैव द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोज फ्रॉम दी, है ना, लैपटॉप और पीसी और ऑनलाइन वेबिनार्स. सेम जो भी फूड है, जो भी फ्रेशनेस है जो एयर की, वो हमें ऐसे नहीं मिल सकती है. जैसे बाहर जाना ही पड़ेगा ना. जैसे हमें नेचर वॉक जब हम करते हैं, जब हम जाते हैं, जब नदी के किनारे जब लोग टहलते थे पहले के जमाने में, तो आजकल तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? वहाँ वहाँ पर इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि ज्यादातर तो पोल्यूशन ही फैल चुका है. तो हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का जो अपनाना पड़ेगा तरीका. और दूसरा है पानी. बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे चीजें जो पानी है, वो नदियों में ऐसे ही डायरेक्टली ना मिलाया जाए. तो इसके लिए भी बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए. अगर वो सब लोग अगर सामने आएंगे, अगर तो तभी पॉसिबल है कि हम जो वो तरीके अपनाए. इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मैनेज विद इन अवेलेबल रिसोर्सेस. जो रिसोर्सेस है उसमें मैनेज करना सीखिए. और फॉलो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल.
तो मतलब कचरा ना फैलाए, कचरा ना क्रिएट करे, और जितने भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको सेग्रीगेट करे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग से और बाद में ही दिया जाए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज आज बहुत सारे ऑप्शंस लेके आई है, बहुत सारे ऑफर लेके आई है, बहुत सारे ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट्स ये सब लग रहे हैं, लग तो रहा है, बट काफी बार ऐसा होता है कि उसमें कोई डिफेक्ट आ जाती है, या तो उसके इमीडिएटली करेक्शन जो है, एक्शन है, वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि वो सारा नदियों में बहता है, फिर समंदर को गंदा कर रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन इतना जो फैल रहा है। तो वो जो तरीके हैं हमें अपनाने पड़ेंगे। हमें अपने फॉरेस्ट जो है उनको रिस्टोर करना पड़ेगा अगर हमें प्योर रिवर्स चाहिए तो। हमें जैसे कि पहले क्या होता था ना, जब भी नदी के किनारे होते थे वहां पर लोग बसते थे, और वहां पर जब बहुत सारे पेड़ उगते थे, जब तो जो भी कचरा वगैरह था तो वो पेड़ों के जो ट्रंक होता है उसमें ही फंस जाता था, नदी में नहीं जाते थे। अब तो पेड़ ही नहीं रहे, तो फिर कैसे होगा ना, वो सारा उसमें जा रहा है। तो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो हम पेड़ उगा रहे हैं वो और ज्यादा उगाए, और हम चाहते हैं कि जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो गवर्नमेंट जो बहुत सारे जो इनिशिएटिव ले रही है ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन स्किल प्रोग्राम्स में, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कॉलेज, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़े, गांव वालों को जोड़े और शहर वालों को भी जोड़े। क्योंकि आज जो छोटे छोटे गांव है वो बोलते हैं ना कि सोना, हमारी जो मिट्टी है वो सोना उगलती है, वो सही बात है। इंडिया में इतने रिसोर्सेस है, इतने नेचुरल रिसोर्सेस है, इतनी सारी नदियां, इतने सारे है ना पहाड़ है, इतने सारे फॉरेस्ट, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल स्किल से होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जैसे मैं म्यूजिक और आर्ट से जुड़ी हूँ, मैं म्यूजिक में विशारद हूँ और कथक में भी मैं प्रभाकर हूँ। सो मेरी इंस्पिरेशन जो है वो नेचर है, राइट। बट अब अगर अगर नेचर जैसे पेड़ है ना, हवा है, पानी है, सो जो भी है, अगर हमारी इंस्पिरेशन ही नहीं रहेगी तो हम पोएट्री कहाँ से लिखेंगे। अगर हमारी इंस्पिरेशन ऐसे ही हम देखेंगे कि पॉल्यूटेड एरिया है सारा, तो बच्चे वो पॉल्यूटेड वाला वो पिक्चर बनाएंगे कि अर्थ इज पॉल्यूटेड। आपको क्या लगता है, वो ऐसे बच्चे पिक्चर बनाते हैं जब वो अर्थ पोल्यूशन फैल रहा है, तो क्या हमें अच्छा लगता है क्या उसमें लाइक मारने को? मुझे तो अच्छा नहीं लगता अगर कोई शेयर भी करे तो। पर अगर वही पिक्चर, अगर ब्यूटीफुल रिवर हो, फ्लावर्स हो, ट्रीज हो, साफ सुथरे रोड हो, रास्ते हो, जो भी है, तो हमें अच्छा लगेगा। सब लोग जब तो हम चाहते हैं कि हम अपने आर्टिस्टों की जो इंस्पिरेशन है उनको भी अगर हमें बचाए रखना है, आर्टिस्टों की जो स्किल है ना, आर्ट, तो वो भी तो अगर ग्रीन स्किल पे ही तो उसका भी आधार है पूरा। क्योंकि बिना इसके यू कैन नॉट अचीव अदर स्किल्स, बिकॉज यही हमें सिखाते हैं दिन रात। हम अभी आज थोड़े ही दिन पहले हमने स्काई में 2 रेनबो क्लियर दिखे थे लास्ट वीक में ही। तो बहुत सारे किड्स ने मुझे मैसेज करा कि मैम हमने 2 रेनबोज दिखे, फोटो शेयर करे, दे वर वेरी हैप्पी। बट वही सोचो, बहुत सारे पार्टिकल्स एयर में है, बहुत सारा धुआं है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं दिखता है, क्लियर स्काई नहीं दिखता है। तो वो कैसे जो आर्ट वर्क है वो कैसे आर्टिस्ट जो है वो अपना आर्ट वर्क कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वही काला सा धुआं उड़ता हुआ। नो, हमें जो अपने जो आर्टिस्ट है उनकी इंस्पिरेशन है उनको अगर बचाना है तो हमें नेचुरलिक स्किल्स, हमें ग्रीन स्किल्स को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे फिर आप मैथमेटिकल स्किल्स का उपयोग करो, टेक्निकल स्किल्स का उपयोग करो। मैथमेटिकल स्किल्स है ना, लॉजिस्टिक है, बहुत सारी अदर स्किल्स है, जैसे काइनेस्थेटिक स्किल्स है, हेल्दी जो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, डांस है ना, बहुत सारे डांस फॉर्म है, या तो फिर ट्रैकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। बट अगर आपके लंग्स अगर हेल्दियर नहीं रहेंगे, अगर अगर आप जो है, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे अगर, तो आप वो सब नहीं कर सकते हैं, राइट। पहले मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो हम जब नदी के किनारे जाते थे तो हम नदियों में से डायरेक्टली पानी पी सकते थे। बट अब तो सबको वाटर प्यूरिफायर चाहिए, एयर प्यूरिफायर चाहिए। ये क्या हो गया?
हम डायरेक्टली पानी वो नहीं पी सकते, इसीलिए अगेन हम अपने अपने वाटर बॉटल्स कैरी करने लगे और पोल्यूशन फैलने लगा। वो साइकिल है ना, विशियस साइकिल है, जो कभी खत्म ना होने वाली साइकिल है। उससे तो अच्छा होगा कि ये सब चीजें अपनाए जहां पर जरूरी है। जैसे मैं ये मानती हूँ कि जैसे कोई आईसीयू में है वगैरह, तो उनको एसी चाहिए, बट अगर आपको जरूरी नहीं है वहां एसी मत चलाइए। अगर एसी चला भी रहे हैं अगर आप, तो उसको लिमिट में रखिए। लाइक ऐसे नहीं है कि 15 18 कुछ भी कर दिया, है ना। इवन हम 28 डिग्री ऐसे रख के भी सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं ना। सो वी हैव टू कंजर्व एनर्जी दिस वे। सेकंड तरीका है जो जैसे कि फैमिली, आजकल न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली में 4 लोग है। अब जैसे मैं अभी यहाँ पर लाई हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे जो किड्स है वो डिसिप्लिन है, तो चलो वो मेरे साथ है। बट काफी बार ऐसा होता है कि 4 अलग अलग लोग, जो घर में 4 लोग रहते हैं और चारों रूम में लाइट पंखे चला रखे हैं, चारों रूम में एसी चल रहा है, चारों रूम में टीवी चल रहा है, तो क्या होता है, फैमिली वैल्यूज भी खत्म होती है और साथ साथ इतना सारा एनर्जी जो कंजप्शन हो रहा है, तो वो भी बहुत हो रहा है। तो हमें इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जो ग्रीन स्किल्स है उसको अपनाया, पर आगे भी हमें कंजर्वेशन भी सीखना पड़ेगा ना। सो एनर्जी कंजर्वेशन इज मस्ट, रिसोर्सेज हमें वाइसली यूज करने होंगे, फूड वेस्टेज नहीं करना है। तो फूड वेस्टेज कैसे नहीं होगा, जैसे हमने बताया कि अगर हम फार्मर्स को अगर सही इंफॉर्मेशन मिले कि भाई अभी कौन सा डिमांड रहेगा नेक्स्ट ईयर, जैसे कि कौन सी चीज ज्यादा उग चुकी है, या तो कौन सा स्टोरेज ज्यादा कैपेसिटी से हो चुका है, और वेदर जो है उसके बारे में अगर अगर पता चले जैसे, तो वो पहले से ही उसका वही फसल ज्यादा उगाई जाए जो ज्यादा डिमांड में है। तो क्या फूड वेस्टेज नहीं होगा, और उनको अपनी आमदनी भी मिलेगी, उनका जो एफर्ट है वो बेकार नहीं जाएंगे, लोगों की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। जो एरिया है, जो जमीन है जिस तरह की है, फॉर एग्जाम्पल गिलोय जूस है आजकल हम बहुत पीते हैं, तो गिलोय और कुछ एलोवेरा और ये सारी औषधि है वो आसानी से उग सकती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो आज का जो यूथ है उनको ये बताए कि ये क्या है। अगर अगर हर जगह पे इसको उगाया जाएगा लोकली अगर, तो कितना आसान होगा लाइफ। उनको बहुत सारी प्रोसेस नहीं करके, बहुत सारी बोतलों में और प्लास्टिक पैकेज में पैक नहीं करके, घर में फ्रेश फ्रेश अगर वो आ जाता है अगर, हाँ थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बट उसका भी तो रास्ता है। क्योंकि अब वो लोकली अगर सब जगह उगता है, तो हमें ज्यादा उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा लोगों को कि वो यहाँ से वहां पहुंचाया जाए, तो सबको वो अवेलेबल हो जाएगा। सो हमने जो चीज जो अभी खत्म हो रही है बहुत सारे एरिया में से, उसको रिस्टोर करना होता है और करना चाहिए। इसीलिए हमने क्या शुरू, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लाइक माइंडेड लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जुड़ चुके हैं, बहुत सारे स्कूल्स जुड़ चुके हैं। सो वो सब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी RWS के साथ मिलके, जब भी वो लोग कटिंग करते हैं, कोई भी ट्रिमिंग करते हैं पेड़ों की, या तो उसके जो उसका जो वेस्ट है, एक्चुअली उसको वेस्ट नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत काम के होते हैं, जो ब्रांचेस है जो स्टेम्स है, हम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डोनेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये डोनेट करते हैं, उसमें से वो उस टहनियों से सेपलिंग्स बनाते हैं। मैं मानती हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा अगर सपोर्ट करें, तो क्या होगा, उनका काम कम हो जाएगा, हमारा जो कचरा है वो वहां तक पहुंच जाएगा जो सोसाइटीज में, इधर वो डंप में जाता है। ओके फाइनली अगर जो लीव्स है, जो पत्ते हैं जो सूखे हैं, ड्राई लीव्स, वो भले कंपोस्ट कर दो और अच्छा सा खाद बनाओ, बट अगर जब तक जो यूजफुल है, जो लीव्स इडेबल है, उनको हम खा सकते हैं, औषधीय जो लीव्स है उनका उपयोग कर सकते हैं, तो हमें ये सारी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ये सारी चीजें। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर फॉरेस्ट्री और ये फार्मिंग ये सब अपनाते हैं, ये सारे स्किल्स अपनाते हैं और उनके साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज करते हैं अगर, और तो ये रास्ता निकल सकता है आसानी से। और हम जो बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो पॉसिबल है, और वो जरूर पॉसिबल है विथ हेल्प फ्रॉम द, मतलब हमें जो ये एक्सपर्ट है जो ग्रीन स्किल्स में है, हमें उनको सुनना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, और हमें ये जो स्किलिंग इंडिया जो है उनका उनके साथ ये लिंकअप करके जो ग्रीन स्किल प्रोग्राम्स है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए।
अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगी मैं। हमने क्या करा, जो सीजनल सीजनल फेस्टिवल्स है, हम स्टूडेंट्सों को सिखाते हैं कि जो सीजनल फेस्टिवल्स है उसको हम इस तरह से मनाए, इस तरह से उसमें हम जो फेस्टिवल्स है जो आते हैं उसको हम इको फ्रेंडली वे में अगर मनाए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी राखियां होती थी, हमने पिछले साल स्मॉल स्मॉल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओ से मिलके पिछले 4-5 साल से हम 8-10 हजार जितनी राखियां एवरी ईयर बना रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बनाते हैं छोटे छोटे एग्जीबिशन या तो बड़े बड़े एग्जीबिशन में उनका सेल करते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो है, वो यूथ है जो, वो सीखते हैं कि वो कैसे बनाई जाए। तो हम इको फ्रेंडली राखियां जो है वो बच्चों को सिखाना शुरू करा। सिर्फ एक राखी बनाओ या तो फिर ज्यादा बनाइए, बट वो हम चाहते हैं कि क्योंकि वो जब राखी वगैरह जो भी फेस्टिवल्स है, आफ्टर फेस्टिवल्स जो कचरा होता है वो अगर हम अपने जो संस्कृति के टाइम बरसों से जो आता चला रहा, जो हमारा देश में हमारे जो दादाजी ने दिया, नाना जी ने जो तरीका दिया था, अगर उसी तरीके से अगर हम मनाते ना फेस्टिवल, तो कभी कचरा नहीं होता। क्योंकि हम उस जमा पहले के टाइम पे हमें याद है, हम केले के पत्तलों में खाना खाते थे, पत्तों के पत्तलों में खाना खाते थे। और हम आजकल की जरूरत पड़ गई है कि अभी अभी नया नया सुना मैंने न्यूज में कि चप्पल बाहर उतारना है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तब घर में ऑफिस में चप्पल पहन के नहीं आते थे, राइट? हाँ, क्योंकि सब एकदम क्लीन रहता था। पर आज पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारी जगह पे ये सारी चीजें। बट हम हमारे जो ट्रेडिशंस जो है, हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, मुझे याद है कि हम जब हवन करते हैं, जब हमने अभी जैसे थालियां बजाई, हम शंखनाद करते हैं, हम मानते हैं साउंड थेरेपी भी होता है कुछ। बिकॉज आई एम इनटू म्यूजिक, मैं म्यूजिक विशारद हूँ। मैं मानती हूँ कि म्यूजिक में भी एक हीलिंग पावर है। जो म्यूजिक अगर नदियों में से आता है, जो म्यूजिक पत्तों में से आता है, हम जानते हैं ना, जैसे बांसुरी वो बांस में से बनाई जाती है। अब बाम्बू प्रोडक्ट की ही बात कर लो आप, बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस है बाम्बू बिजनेस, बाम्बू का जो प्रोडक्ट्स है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इसको अपनाए अगर, तो पॉसिबल है ना, ग्रीन स्किल्स अगर ज्यादा स्प्रेड हुए और ज्यादा लोग बाम्बू की प्रोडक्ट अपनाए, तो हमें बाम्बू की स्ट्रॉ है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ को रिप्लेस कर दो बाम्बू स्ट्रॉ से, राइट? बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो प्लास्टिक के बदले बाम्बू के अपनाया जाए, तो जो टेम्परेचर है वो नेचुरली ठीक रहेगा। जो बिल्डिंग है, जो रिसोर्ट्स है, जो घर है, ऑफिस है, तो अगर हम बाम्बू की अगर फार्मिंग भी करें, अगर जैसे अगर फार्मर्स भी उसको बाम्बू की खेती, अगर बाम्बू के पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, अगर वो फूड भी उगाए, पर फूड इतना उगाए जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना हम स्टोर कर पाए, और फ्यूचर के लिए थोड़ा बचा के रखे। बट अगर तो हम बाम्बू प्रोडक्ट्स जो है अगर हम उसको अपनाते हैं जैसे, तो भी ये पॉसिबल होगा कि जो भी ये बाम्बू बिजनेस है, बाम्बू की जो प्रोडक्ट्स है, पहले मुझे याद है हम हमारे जो मिठाइयाँ होती थी वो बाम्बू के वो पैकिंग आते थे उसमें आती थी। आज वो प्लास्टिक के कंटेनरों ने ले लिए वो जगह, जो एक्चुअली हेल्दी नहीं है। क्योंकि हम जरूरी है वहां तुम यूज कर लो प्लास्टिक, बट सब जगह तो ये जरूरी नहीं है ना। तो हमारे मंदिरों में मुझे याद है प्लास्टिक यूज नहीं करा जाता है। हाँ, मंदिरों में जो है वो बाम्बू की जो प्रोडक्ट है। फिर जो ये केले के जो पेड़ के पत्तों में प्रसादी दी जाती थी, राइट? तो यही चीज, यही तरीका हमें अपनाना चाहिए फिर से। मुझे पता है कि हम जब औषधियों की बात करते हैं, पहले जब नीलगिरी के जो पेड़ है, ये भले सब मानते हैं कि जमीन में से पानी कम हो रहा है, बोलते हैं लोग ये, पर हमारे अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो मुझे पता है कि आजकल हमने बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का सर्वे करा जब, तो हमने देखा, हमने आरडब्ल्यूएस के साथ सर्वे करा, मीटिंगें करी, बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मिल के बातें करके और जाके सर्वे करा, यूथ यूथ पावर टीम के साथ सर्वे करा, बहुत सारे लोगों के साथ। और मैं मेंशन करना चाहूंगी एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 43, अमेजिंग टीम, यूथ पावर टीम। अभी उनका जो थीम था ना प्लास्टिक थीम, उसमें मैं साथ में जुड़ी उनके साथ। एंड प्रिंसिपल मैम जो है अंशु अरोड़ा मैम, उन्होंने हमें बहुत बहुत स्टूडेंट्स जो है उनकी लीडरशिप के अंडर जो काम कर रहे थे, मतलब एफर्ट ले रहे थे अपना, तो हमने सर्वे करा था, तो पता चला कि बहुत सारे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पीड है वो हाइट में है,
मतलब कि वहां तक पानी पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या होता है, पानी सड़कों पे आ गया। दूसरा, बहुत सारे जो नालियां है वहां पर प्लास्टिक फंस जाता है, क्योंकि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके नहीं अपनाए जाते हैं, इधर उधर कचरा फैल जाता है, फेंक रहे हैं, तो पानी में बह के जब बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम करता है। अगेन पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। अब ई मोबिलिटी की बात करें अगर हम, जैसे फ्यूल या तो ई मोबिलिटी, इसमें भी बैटरी में हमें फिर से वही, सो इट्स बेटर टू फॉलो रिड्यूस रिसाइकल। सो हम जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जमीन का जो पानी का जो जो है वो नीचा जा रहा है, पानी जो था उसका, तो इसके लिए पहले क्या था, सारे लेक बड़े अच्छे सुंदर पानी से भरे रहते थे, नदियां पानी से भरी रहती थी, तो जमीन ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती थी, वहीं से सारा पानी उसमें जाता था। आजकल क्या होता है, बारिश थोड़ी सी हुई और पानी रोड पे। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम अनजाने में जो कूड़ा कचरा जो है, जो प्लास्टिक वे सिंगल यूज प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये स्ट्रॉज है, ये सारी हम फेंक रहे हैं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हैजार्डियस वेस्ट, ई वेस्ट। ई वेस्ट, आज मैं जैसे बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से कर रही हूँ आप सबके साथ, बट मैं मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कि जब मैं जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कुछ भी यूज करती हूँ, जब वो डिस्कार्ड करना है, जब वो अ, खराब हो जाता है, डिस्कार्ड करना है, तो प्रॉपर वे में उसका डिस्कार्ड करना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसके लिए हमें चाहिए कोलैबोरेशन करना पड़ेगा सब एक दूसरे के साथ। जैसे जो कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो इतना अच्छा होगा, है ना? सो आजकल जैसे मेरे भी जो किड्स है वो मुझे बोलेंगे मम्मा नया मोबाइल, तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा कि जब तक ये अच्छे से चलता है, जब तक ये प्रॉपर है, तो उसी को यूज करो। क्योंकि अगर हम यूथ को ये सब नहीं सिखाएंगे और यही यूथ सीखेगा कि जो चाहिए वही चाहिए, एम्बिशियस होना अच्छी बात है। अगर आप एम्बिशियस बनो कि हम इतने सारे अच्छे अच्छे पेड़ उगाएंगे, एम्बिशियस बनो कि हमारी रिवर्स हम पोल्यूशन फ्री करेंगे, है ना, पानी जो है उनको प्योर करेंगे, इसके लिए अगर हम एम्बिशियस बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, पर टेक्नोलॉजी का जो यूज है, सही यूज, जैसे हम उन फार्मर्स को हेल्प करें अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, हम फार्मर्स को हेल्पफुल बने, उसके लिए फार्मर्सों को भी थोड़ा सा, जो जो किसान भाई है उनको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे एक प्रोग्राम आता था किसान की बात, जो एफएम गोल्ड से ऑल इंडिया रेडियो से जब ब्रॉडकास्ट होता था, तो मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को उनके साथ जोड़ा। हमने बहुत सारे किसान भाइयों को वहां पर विजिट करके देखा कि उनकी सिचुएशन क्या है, तो पता चला कि उसमें से जो यूथ है वो उनको काफी बार पता नहीं होता है कि कौन से स्किलिंग प्रोग्राम्स, कौन से ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स कहाँ से जुड़ सकते हैं। तो उनको तक वो इन्फॉर्मेशन अगर हम पहुंचाते हैं तो वो अच्छी फार्मिंग ये सब कर सकते हैं, है ना? जैसे ये बाम्बू प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा अर्निंग ऑप्शन है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है पोल्यूशन का, राइट? ट्रीज भी उगेंगे और ऑक्सीजन भी मिलेगा, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एसडीजीज उनको हम सही मायने में अचीव कर पाएंगे। सबके पास फूड होगा, सबके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, सबके पास एजुकेशन होगा, सबके पास प्योर वाटर होगा विथ ग्रीन स्किल्स। सो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आरईपीसीआई फाउंडेशन जो है, जो आज आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और मैं सबसे कनेक्ट हुई। ये बात अलग है कि मैं फेसबुक लाइव में पहली बार आज बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी मैं भी सीख रही हूँ, नया नया स्किल्स मेरे लिए भी ये नया है। बट हाँ, हमारे जो साथ ग्रुप जुड़े हैं, हमने जो रूट स्किल्स की मैं फाउंडर हूँ, सो हियर इट इज रूट स्किल्स, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, connect to the root skills, connect to the traditional skills, and let's empower our nation। और हमारा जो कंट्री है वो नंबर वन कंट्री, नंबर वन आत्मनिर्भर कंट्री ग्रीन स्किल के साथ बने, ये मेरा सपना है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं नाम मेंशन करना चाहूंगी, जगदीश चौधरी जी का जो बालाजी कॉलेज से है, मैं देख पा रही हूँ आपकी कमेंट, आपकी शुभकामना इधर मैंने देखी है अभी अभी।
और सौम्या जोशी जी जो है वो सुन रहे हैं मुझे शायद अभी। सो आई विश, और बहुत सारी जो स्कूल्स मेरे साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं मुझे आज। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो ग्रीन स्किल्स है, ये वेस्ट मैनेजमेंट, ये सोलर एनर्जी, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, ये सारे तरीके से अपना के हम सारे ये अपना पाए अगर, तो हमारा देश डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत एकदम फिर से खड़ा हो जाएगा। और जो हमारा सपना है इकोनॉमी हमारी जो स्ट्रांग बनाने का जो सपना है, जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो मिट्टी है, वो आज भी सोना उगलती है। हमारी जो नदियां है वो आज भी इतनी पवित्र है, हम उनको वर्शिप करते हैं। बस यही है कि उसमें कचरा ना फेंके, है ना, और वो हमेशा प्योर रहेगी, है ना। सो हमारी ड्यूटी में आता है कि हम हमारी सॉइल को फर्टाइल करें, हम उनमें सॉइल फर्टिलाइजर यानी कि जो कंपोस्ट मैन्योर है वो बनाते जाए और उसमें मिलाते जाए, राइट। तो मतलब कि अगर हम समंदर में प्लास्टिक के साथ फेंकते हैं, नदियों में बहता है जब वो लिचिड जो होता है, जो एयर पोल्यूट करता है, तो हमें सही वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके अपनाने पड़ेंगे। और ये वेस्ट मैनेजमेंट के सही तरीके तभी पॉसिबल है जब हम लोग घर घर से ये तरीके अपनाए, हम अपने घर से ये शुरुआत करें। हम वाइस प्रोडक्शन जो है, मतलब हमें जो फूड खाना है वही हम बनाए और लाया जाए, ना ही कि फिर हम पड़े पड़े उसको एक्सपायरी डेट आ गई और फेंक दे, राइट। ऐसे ही सबको मिलजुल के कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर हो, और जो किसान भाई है जिसको तो हम बोलते हैं कि फादर ऑफ द नेशन, राइट। और जो बहनें हैं मेरी जो अभी अभी मुझे सुन रही है, जो होम मेकर्स है, उनके ऊपर भी बहुत सारी जवाबदारी है, क्योंकि आज की जो महिलाएं है वो घर से बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर पे रह के भी बहुत सारे काम कर सकती है, जो आज वो प्रूव हो चुका है। क्योंकि जब हम इकोनॉमी की बात करें तो जो जितने परसेंटेज जो महिलाएं है उसमें से बहुत कम परसेंटेज महिलाएं आज वर्किंग है। बट ग्रीन स्किल्स जो है, ट्रेडिशनल स्किल्स है, वो एक्चुअली महिलाएं ऐसे ही बाय बर्थ अपना लेती है, उनके ऊपर काफी बार थोप दी जाती है, बट वो प्यार से अपनाती है। पर जो महिलाएं, जो बेटियां है, वो टेक्नोलॉजी अपनाना चाहती है, तो उनको भी अपनाए। और मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि इवन वुमन कैन फ्लाई, वुमन के है ना, वो भी एक आज देखते हैं कि स्पेस में भी जाती है महिलाएं, और विमान भी उड़ा रही है महिलाएं। सो ऐसे ही ग्रीन स्किल का ही जो बात कर रहे हैं, जो फार्मर्स कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारी महिलाएं जो एंगेज है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट। आई सैल्यूट ऑल ऑफ दी वुमन एज वेल, बिकॉज बिना उसके ये बिना सपोर्ट के इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी। सभी महिलाओं को भी साथ साथ काम जो कर रही है ऑलरेडी, पर उनको भी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करना है अगर, तो उनको भी पढ़ाना लिखाना जरूरी है। तो सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखने का मौका दे, और उनका भी जमीन में वही हक बनता है जो बेटे का बनता है। सो क्योंकि वो भी एक अच्छा उगा सकती है। मैंने काफी बार सुना है कि बहुत सारे एरिया में बेटियां जब शादी करके जाती है तो उनसे वो उनको वो जमीन ये सब में राइट नहीं दिया जाता है, वो स्वेच्छा से छोड़ देती है। वो छोड़ दे वो अलग बात है, बट उनको ऑफर तो करा जाना चाहिए, क्योंकि जो बेटा अगर उगा सकता है जो अनाज और क्रॉप, वही बेटियां भी उगा सकती है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन के बस फॉलो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ग्रो मोर ट्रीज, कनेक्ट टू द ट्रेडिशनल स्किल। एंड अब एनी क्वेश्चंस और वो है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं मुझे, और मैं बाद में भी इनका रिप्लाई कर सकती हूँ। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं रूट स्किल्स जो है www.rootskills.in जो है वेबसाइट है, और आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स हमसे जुड़े, और हम साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ काम करें और बदलाव लाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पर फिनिश करना चाहूंगी।
Okay, I want to introduce my son Takshil Buddhadev with you all. Hello Takshil. आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सबको? Follow, reduce, reuse, recycle. Okay, so Takshil support me a lot. He is my inspiration. He is the receiver of National Child Award 2014 from Honorable that time जो अपने जो राष्ट्रपति है जो प्रणब मुखर्जी जी जो है उनके हाथों उनको अवार्ड मिला हुआ है और वो मुझे स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सपोर्ट कर रहा है उनके जो गोल्स अचीव करने के लिए और फार्मर्स वेलफेयर के लिए भी बहुत काम मुझे हेल्प करता है और आज जो मैं ऑनलाइन हूँ उसमें टेक्नोलॉजी में वही मुझे हेल्प करा है. सो आई एम प्राउड ऑन हिम एंड माई यंगर सन जयशील बुद्धदेव वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है. वो जब 2 साल का था तब से वो रेगुलरली कंपोस्ट मैन्योर बनाने में मुझे मदद करता है और वो क्या करता है कि जो भी मटर के छिलके हैं सब्जियों के छिलके हैं उनको वो छोटे से गमले या तो कंपोस्ट पिट में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है. तो वो पिछले 8 साल से ये कंपोस्ट मैन्योर बना रहा है. वो अभी 10 साल का है एंड ही इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2017 from Sri Ramnath Kovind ji, right? So I am proud mother of 2 national awardee kids. But ये ग्रीन स्किल से ही पॉसिबल हुआ है कि मैं आज आप सबके साथ बात कर पा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए है एक्सपीरियंस मेरा. हमने मिलके 2.5 लाख से ज्यादा बिग ट्रीज लगाए हैं अलग अलग हुडा पार्कों में RWS के साथ स्कूलों में और वो सारे ट्रीज अब 2-2 मंजिले के हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ ये सब शेयर करके आपके साथ. तो तक्षिल हियर वी विल एंड आवर वीडियो एंड थैंक यू.